Good morning, students. Now, next topic. You have already done Lorentz, magnetic Lorentz force and Lorentz force. The next topic is similar. It is regarding magnetic force due to on a current carrying conductor. Okay, magnetic force on a current carrying conductor. So, what happens here if there is external field B and there is a charge moving with velocity V, then there will be magnetic Lorentz force F is equal to QE cross B. Now we know that any charge which is moving will have a velocity of drift velocity, right? Current में जो charge move होता है it has drift velocity Vd. So drift velocity अगर Vd है और charge total how many electrons or how many charges are there, then Q is equal to NAL. N is number density, मतलब total number of charge upon volume into area of cross section into length, ये volume होता है. तो ये total number of charge हो गया into E कर दो क्योंकि electron is a free charge carrier, so into करोगे तो total charge Q मिलता है. Okay, in a wire. Now F is equal to the force. Q की जगह पे हम ये डाल देंगे NALE, ये Vd हो गया, ये B हो गया magnetic force. Now combine these things on the whatever is there on the left side of the cross product, combine all of them. Okay, ये अंदर ले जाएंगे तो NEAVD. If you remember, this is current. Okay, so NEAVD ये current हो गया AL, NEAVD है ना, और ये L extra है. So NEAVD is current और L extra है. ए भी इसके साथ NEAVD, ए हटा दिया, ए बाहर का NEAVD करोगे तो करंट हो जाएगा, लेकिन ए अगर बाहर रख, सी आई विल टेल यू व्हाट, I इज इक्वल टू NEAVD, यही आया था डेरिवेशन. नाउ करंट डेंसिटी J जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ J इज I बाय A. सो NEVD, ए तो डिवाइड हो गया, दिस इज करंट डेंसिटी. ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे NEVD कंबाइन किया. ठीक है, ए बाहर है, एल बाहर है, दिस बिकम्स करंट डेंसिटी J, विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन, इसलिए J, इसकी जगह J AL क्रॉस B. J इंटू A इज करंट, लेकिन करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड JL इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज J वेक्टर है, और J की डायरेक्शन क्या है, जो डायरेक्शन है VD की, मतलब करंट की डायरेक्शन. सो JAL, L पे वेक्टर लगा देंगे, इसको बना देंगे करंट और L को वेक्टर बना देंगे, तो IL क्रॉस B. ओके, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इज ऑल्सो IL क्रॉस B. सो अगर इफ यू हैव अ कंडक्टर विच कैरीज अ करंट I present in external magnetic field B and the conductor's length is L, then you will use this formula IL cross B, मतलब IL be sin theta. If theta is 90 degree, force will be maximum. If L and B are in parallel or anti-parallel, then force will be 0. But if you have a single charge moving with velocity v, तो फिर magnetic Lorentz force QV cross B होता है. ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद magnetic field पे फिर से आ जाओ. magnetic field induction, दिस इज ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड. तो कॉन्सेप्ट है उसकी, इसका स्ट्रेंथ, हाउ डू वी मेजर, तो द फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज टू मेजर इट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. ठीक है, इंडक्शन बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं. ठीक है, एक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. एंड हाउ वी डिफाइन इट, डेफिनेशन तुम्हें पहले भी बताया है. मतलब डेफिनेशन कहाँ से आया था, दैट फोर्स फॉर्मूला ना, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स QV क्रॉस B से. सो व्हेन हाउ विल यू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, it is the amount of force which acts on 1 coulomb charge moving with unit velocity perpendicular to the magnetic field. Okay, it is the amount of force experienced by 1 coulomb charge or unit charge moving with unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field at that point. That's how defined. And what is the unit of this magnetic field induction? It is Tesla, capital T, और Weber per meter square. Weber जो है W capital B small, Weber is actually unit of magnetic flux, लेकिन उसका डेंसिटी कर दोगे तो Weber per meter square हो जाता है, which is Tesla. Okay, now how will you define this? That means 1 Weber per meter square or 1 Tesla. How will you define? So this will be 1 Tesla. If this is 1, this is 1, this is 1. That means when 1 Newton of force is experienced by unit charge moving with unit velocity perpendicular to magnetic field, then the field is said to be of 1 Tesla magnitude. Okay, B is said to be 1 Tesla if a charge of
1 coulomb while moving at a 90 degree to magnetic field with a velocity 1 meter per second square experiences a force of 1 Newton at that point, then the magnetic field is said to be 1 Tesla. Now very important law is the Biot-Savart law. ठीक है, Biot-Savart law. अब डायग्राम देखो यहाँ पे, दिस इज अ वायर, स्मॉल सेक्शन ऑफ वायर. ये स्मॉल सेक्शन में भी एक छोटा सा स्मॉल सेक्शन कंसिडर किया है. दिस इज नॉट अ स्ट्रेट वायर, दिस इज एनी काइंड ऑफ कर्व वायर, कैसी भी वायर हो सकती है. उसमें हमने एक बहुत छोटा सा सेक्शन ले लिया, एनी पॉइंट. नाउ बिकॉज दिस इज अ सिंगल वायर, एवरीवेयर करंट विल बी सेम, है ना, चाहे उसकी कोई भी टाइप की शेप हो, कर्व हो, करंट सेम रहेगा. अब इस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो how will we find magnetic field? So for that we have Biot-Savart law. So at any point you consider a small current element, ज़रूरी नहीं यहाँ कहीं पे भी ले लो, and then you join it with point P. तो ये जो vector है, joining this current element to point P, this is vector R, position vector of this element, okay, with this point. And this small section you consider current अगर इस डायरेक्शन में, तो ये DL, छोटा सा DL लेना, ये डायरेक्शन होगी DL, and the angle between DL and R is theta. ठीक है. सो द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at this point dB will be very small because of small section dB at a point due to current element depends on these factors. This dB, small magnetic field, is directly proportional to current. It is directly proportional to dl, length of the conductor. It is directly proportional to theta, sin theta, where theta is angle between the current element and the position vector, and it is inversely proportional to square of position of the point from the current element. Okay, so statement, when you have to state Biot-Savart law, you'll write that magnetic field induction dB at any point due to current element depends upon, then you will write the point, directly proportional to current, carrying current in the wire, directly proportional to the length of the wire, conductor, directly proportional to sin theta, where theta is angle between the current element and position vector of the point, and directly inversely proportional to square of the distance of the point from the current element. And when we club this together, dB, we get I dl sin theta by r square. Okay, and when you write proportionality हटा के equal to डालते हो, तो एक proportionality constant आ जाता है. We write, I've written it as k. So k I dl sin theta by r square. Now this k is not same as electrostatics k. Electrostatics में भी तुमने F is equal to k q1, F is equal to k q1 q2 by r square डाला था, but there this k was 1 by 4 pi epsilon naught. But here anywhere if you are writing in magnetism, if you are writing k, okay, like here dB, see, मैं फिर बता दो, ये करंट एलिमेंट, ये वायर है, यहाँ पे मान लो पॉइंट P है, ये इसका लेंथ है dl, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, सो I dl इज द करंट एलिमेंट. इस यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ये R हो जाएगा. दिस इज द डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, दिस एंगल विल बी थीटा. सो dB, magnetic field at this point due to this small section of current, is equal to mu naught k I dl sin theta by r square. ठीक है, I proportional to dl proportional to sin theta upon proportional to inversely proportional to r square. ठीक है, तो ये तो मैग्नीट्यूड के बारे में. This k is different from the k of electrostatic. Here k is mu naught by 4 pi. यहाँ पे था 1 by 4 pi epsilon naught, यहाँ पे mu naught by 4 pi. This k was equal to, in vacuum, 9 into 10 raised to power 9. But this k in vacuum is equal to 10 raised to power minus 7 Tesla meter per ampere. Okay, 10 raised to power, mu naught by 4 pi is 10 raised to power minus 7. ये वैक्यूम में है. If you go to any other medium, तो यहाँ पे mu r mu naught by 4 pi आ जाएगा. Where mu naught is relative permeability. Permeability. This was permittivity, epsilon naught. This is permeability. Mu naught is permeability, and mu r is relative permeability. Okay, got it? So what will be value of mu naught? Mu naught will be 4 pi into 10 raised to power minus 7 Tesla meter per ampere. Got it? Mu r is relative permeability of the medium. So you come back here, k is mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. Okay, so dB is mu naught by 4 pi I. This can again be written as, अब देखो ये जो है, ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square.
अब मैं जो आर स्क्वायर है इसमें ऊपर आर नीचे क्यूब कर दूंगी, है ना। सो व्हाट आई गेट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। कर सकती हूँ ना डी एल क्रॉस आर, बिकॉज डी एल क्रॉस आर विल बी डी एल आर साइन थीटा, डी एल आर साइन थीटा। पर ये थीटा जो है शुड बी एंगल बिटवीन दिस टू, एंड ये थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं डी बी, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ. This was just a magnitude form. This is vector form mu naught by 4 pi I dl cross r by r cube. Okay. And also अगर करंट नहीं है तो करंट की जगह पे Q के टर्म्स में लिखना है. तो यू रिमेंबर Q, देखो फोर्स क्या था, आई डी एल क्रॉस वी, आई एल क्रॉस वी, है ना, आई एल क्रॉस बी. अब आई एल क्रॉस बी की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा क्यू वी क्रॉस आर बाय आर क्यूब. बस आई डी एल की जगह क्यू वी डाल दो, क्योंकि आई डी एल इज़ क्यू वी. ठीक है, आई डी एल की जगह क्यू वी डाल दो, बाकी सब कुछ सेम है. म्यू नॉट बाय 4 पाई. दिस इज फॉर सिंगल चार्ज, दिस इज फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर. तो तुम्हें जो भी क्वेश्चन में दिया अकॉर्डिंगली यू विल यूज इट. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल यूज बायो-सेवर्ट लॉ. तो क्लियर हो गया, बट इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, पहले हम ये वाला करेंगे. इट्स वेरी ईजी. तो सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये मान लो कि थोड़ा सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप होगा, लूप ओके, और सर्कल. तो पूरा तो क्लोज नहीं कर सकते, करंट को यहाँ से जा रहा है यहाँ से. सो दिस इज हाउ करंट इज फ्लोइंग. ठीक है, इट्स अ लूप. दिस इज द सेंटर. वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द पॉइंट O. सो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ क्या करना है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट कहीं भी ले सकते हो. तो यहाँ पे ले लिया मैंने. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे करंट एलिमेंट ले लिया तो आईडीएल की डायरेक्शन नीचे की तरफ है. ठीक है ना, ये आईडीएल हो गया करंट एलिमेंट. ये आर हो गया इस तरफ. ठीक है, ये आर हो गया, आर की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है. और एंगल क्या है इनके बीच में, 90 डिग्री है. ओके, सो व्हेन आई यूज बायो-सेवर्ट लॉ, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब. तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैग्नीट्यूड आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. अभी देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है. ठीक है, तो तुम्हें 11th में वॉट एवर यू हैव डन राइट हैंड स्क्रू रूल टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर, दैट सेम रूल यू कैन यूज हियर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इफ़ यू रिमेंबर क्रॉस प्रोडक्ट का जो राइट हैंड स्क्रू रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल में वी यूज राइट हैंड. ओके, राइट हैंड, यू विल यूज राइट हैंड. दिस इज माई फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज माई सेकेंड वेक्टर. सो याद रखना कि your forefinger, this index finger is for the first vector and this central finger is for the second vector. ठीक है, या फिर अगर हम ऐसे करते तो फिर thumb will give you the direction of the cross product. तो अब तुम देखो DL नीचे की तरफ है, तो फर्स्ट फिंगर मुझे नीचे करना है ना, नीचे की तरफ. और तो अभी देखो नीचे की तरफ करना है. ओके, और तुम्हें दिखाना भी मुश्किल है. एंड R इस तरफ होगा. हाउ टू शो यू, यस, आर इस तरफ है, तो माई थम इज पॉइंटिंग डाउन. आर इधर है, डीएल नीचे की तरफ है, थम इज पॉइंटिंग डाउन. ओके, सो थम इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड. अगर मैं यही डीएल यहाँ ले लेती, ठीक है, अगर मैं यहाँ नहीं लेके डीएल यहाँ ले लेती आईडीएल, तो आईडीएल फिर आईडीएल की डायरेक्शन ऊपर होती और ये आर जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता. फिर अभी तो इधर था, तो उस टाइम तुम अगर यूज़ करते तो आईडीएल ऊपर की तरफ, आर उस तरफ, और फिर भी इफ़ यू जस्ट चेक आउट, फिर भी तेरा था नीचे की तरफ ही. ठीक है, सो देन ऑल्सो इट विल बी डाउनवर्ड. सो नो मैटर वेयर यू टेक इट, वेयर एवर यू टेक द पोजिशन, एवरी टाइम इट इज़ कमिंग डाउनवर्ड. सो वॉट यू विल डू, यू विल एड अप. ठीक है, सारे ऐड हो जाएंगे. सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इंटीग्रल ऑफ डी बी. और इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब तुम देखो ये सब कांस्टेंट है, ये डी एल है, तो डी एल के लिए इंटीग्रेट करोगे, है ना. तो यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. इंटीग्रेशन डी एल के लिए, अब डी एल क्या यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ 0 to 2 पाई आर, दिस विल बी डी एल. ओके, वाई, बिकॉज करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी एल, थीटा इज इंडिपेंडेंट. कोई भी पॉइंट ले लो, थीटा 90 रहेगा, ये ले लोगे तो भी 90 रहेगा. सो साइन थीटा हियर इज 90 डिग्री. ठीक है ना, ऑल बेस. सो सिंस थीटा इज 90 डिग्री, तो वॉट आई विल गेट, दिस विल बिकम 1. तो मुझे म्यू नॉट में 4 पाई बाहर ले लो, आई बाहर ले लो,
और आर रेडियस है वो भी बाहर ही आ जाएगा, कांस्टेंट होगा. सो इट्स ओनली डी एल विच इज़ देयर इन द इंटीग्रल. सो व्हेन यू विल इंटीग्रेट म्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर आई, इट विल बी 2 पाई आर माइनस 0 विच इज़ 2 पाई आर ओनली. नो, तो एक आर इससे कैंसिल हो गया, पाई पाई से कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे 2 बचा. सो यू गेट म्यू नॉट आई बाय 2r. Okay, magnetic field at the center is mu naught I by 2r. Okay.